Hello everyone, we have completed the explanation part of the poem Roadside Stand. This time to move on toward the question answer of the poem Roadside Stand written by Robert Frost. First we'll see extract based question and then some short question answer from the textual part, right? So stanza number 1 देखते हैं सबसे पहले. The little old house was out with a idle new shade. In a new shade से लेकर हमारा है withering faint तक. When I am telling you this extract, you can just keep your textbook with you so that you can go through the lines as well if you don't want to read from this side. Now see, as I discussed earlier, that there is no particular rhyme scheme or particular text writing format. So see here the writings, this line have been given in this form, means there is no division of the line. So if the some of the literary devices can create the confusion like repetition, that how much part of this text we should consider as one line, right? तो इसमें ये अगर जैसे यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यहीं पर कोई क्वेश्चन है, अगर पोएटिक डिवाइस पूछी जाती है तो यू कैन कंसिडर दिस एज अ वन लाइन. वाई? बिकॉज इट इज गिवन हियर. तो the same is there in your question paper. Whatever the line division is coming in your question paper, according to that you have to consider and find out the poetic devices. Okay, don't consider that the textbook part or any other the reference book that you have gone through. आपके क्वेश्चन पेपर में जिस तरह का डिवीजन दिया गया है, अगर उसको लाइन 1 और लाइन 2 कंसीडर किया गया है तो उसको लाइन 1 ही आप कंसीडर करेंगे, पूरा आप कंसीडर नहीं करेंगे इस तरह की पोम में जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है. आपके इस यहाँ पर कोई ज़्यादा पोइम नहीं है, ज़्यादातर में है राइम स्कीम, पर्टिकुलर राइम स्कीम है. एक आपकी जो एलिमेंट्री स्कूल दैट इज़ नॉट द पार्ट, बट ये जो रोड साइड स्टैंड है इसको छोड़कर बाकी सब में है, तो सिर्फ इसमें ही आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इन लाइन से. वाई वॉज द न्यू शेड पुट अप बाय द विलेजर्स. जो विलेजर्स थे उन्होंने नया शेड क्यों लगाया था? शेड का मतलब जो आगे का पार्ट होता है, जो ऊपर शेड होता है, वो क्यों लगाया था? द न्यू शेड वॉज पुट अप बाय द विलेजर्स टू अर्न सम मनी बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स. क्या प्रोडक्ट्स थे उनके? वेजिटेबल वगैरह, उसको सेल करने के लिए लगाया था. Why the word pathetically was used? Pathetically was used to show the miserable and pitiful condition of the farmers. Pathetically, here the word has come pathetically. तो वो किसके लिए आया है? pathetically pled is called requested. वो उनकी farmers की जो condition है pitiful, उसके लिए आया है. What would not be fair and why? To say for a dole of bread would not be fair because those farmers have their self-respect and they do not need begging. उनको भीख नहीं चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि आप आओ और हमको कुछ खाने के लिए हमको पैसे दे के चले जाओ. No, we are doing work in the exchange of the service that we are providing. We are asking the money. Okay, next question देखो. How cash supports the cities? Cash escapes the cities from sinking and withering faint. कैश कैसे सपोर्ट करता है सिटी को? सपोर्ट कैश तो एस्केप द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग, मतलब जो सिटी के पीपल हैं वो विद द पावर ऑफ द कैश, विद द पावर ऑफ द मनी, दे कैन नॉट ग्रो ऑन टुवर्ड्स द सिंकिंग और टुवर्ड्स द ड्राउनिंग. वो उनको नीचे नहीं जाने देता, डिग्रेड नहीं होने देता, वो उनको मरने के लिए, खाने के लिए, भूख से मरने के लिए नहीं छोड़ता है. तो यहाँ पे कैश क्यों इंपॉर्टेंट है? सिटी को कैसे, सिटीज का मतलब है पीपल को कैसे वो हेल्प करता है, क्या लोगों के पास मनी है सो दैट वट एवर दे कैन डू, दे वॉन्ट, दे कैन डू. Next देखो, stanza number 2. The polished traffic passed with a mind had or if ever a sighter moment than out of the sorted, having the landscape marked with the atlas paint of signs that would in turn wrong and stern wrong. Offered for sale wild berries in wooden quarts or coke-necked golden squash with silver warts. Of beauty rest in a beautiful mountain scene. अब देखो, अगर आपने टेस्ट नहीं पढ़ा होता तो आपको ये वर्ड जो है ये बहुत ऑकवर्ड लगेगा. वाई? बिकॉज यहाँ पर जो एस है वो टर्न से थोड़ा सा क्लोज हो गया है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है. यहाँ पर जो एस है ये साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए टेक्स्ट पढ़ना एक बार ज़रूरी होता है. क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द पॉलिश्ड ट्रैफिक मीन? द पॉलिश्ड ट्रैफिक मीन्स द ग्लॉसी, डेक्सचरस एंड प्राउडी ट्रैफिक. ग्लॉसी, शाइनी, डेक्सचरस, एकदम चमचमाती हुई जो गाड़ियां हैं उनको ये चीज डिपिक्ट कर रही है. हाउ द लैंडस्केप वॉज मार्ड. मार्ड इज कॉल्ड डिस्टर्ब या बैड कंडीशन. वो लैंडस्केप को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? द लैंडस्केप वॉज मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ द साइन दैट विद
N turned wrong and S turned wrong. तो कैसे उस जो लैंडस्केप का है जो ब्यूटी है वो कैसे खत्म हो गया है, जहां पर जो N और S का साइन है वो डिस्टर्ब हो गया है, मतलब वो गलत डायरेक्शन शो कर रहे हैं. एंड बिसाइड्स दिस जो हट है, ठीक है, हट का मतलब कौन सी हट है, जो रोड साइड स्टैंड है. रोड साइड स्टैंड कैसे बनाया गया है, रोड साइड स्टैंड एक पुरानी हट में बनाया गया है, तो वो भी उसकी ब्यूटी को हैम्पर कर रहा है. और उसके साथ साथ जो एन और एस जो डायरेक्शन के साइन है वो गलत है, वो भी उसकी ब्यूटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं. what was sold there at roadside stand, क्या बेचा जा रहा है, wild berries in the wooden quartz, this is not quartz, it is quartz, क्यों है ये, and crooked neck golden squash with the silver wats are sold there. so some of the item, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो आइटम ही मिल रहे हैं, but it is described in the text, so answer is given in that manner. क्या मिल रहा है, wild berries मिल रही हैं जो वुडन के जो क्वार्ट्स हैं, जो बॉक्सेस हैं उसमें हैं, और जो एक लंबी नेक का जो गोल्डन स्क्वाश है जो वेजिटेबल है जिसपे सिल्वर वॉट्स हैं वो सोल्ड किया जा रहा है. Now what is meant by out of sort? Out of sort means complaining, bad tempered or unhappy. Out of sort मतलब कहीं से भी इधर उधर चले जाना, different kind of. तो different kind के क्या है, complaining है, bad tempered है and unhappiness है, जो कि सारी untold है, because that is need to be understood by those people itself. Next देखो, you have the money but if you want to be mean, why keep your money his crossly and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make a roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life for the moving pictures promise that the party is power is said to be the keeping from us. इसमें इन लाइनों में से फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द सिटी ड्वेलर्स प्रूव्ड टू बी मीन. मीन का मतलब क्या हुआ, सेल्फिश. कैसे है वो सेल्फिश, क्यों बोला गया उनको, द सिटी ड्वेलर्स हैव इनफ मनी बट दे डू गो अलोंग विदाउट स्पेंडिंग इट. वो साथ में चले जाते हैं, उसको खर्च नहीं करते हैं रोड साइड स्टैंड पे, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मीन. Where have they made their roadside stand? They have made their roadside stand far from the city. Why? Because in city there is no place for them. Why do the farmers need some city money to feel in hand? The farmers need some city money to feel in hand to make their being expand and to live life like their idols or hierarchies. हीरोज आप बोल सकते हो या सक्सेसफुल बोल सकते हो, आइडियल्स बोल सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे हीरोज आएगा या आइडियल्स या मेंटर्स. क्यों चाहिए उनको, क्यों फील करना है अपने हाथ में मनी, उनको अपना लाइफ एक्सपेंड करना है. एक्सपेंड का मतलब उनको ये चिंता ना रहे सिर्फ इसी में पूरा ज़िंदगी गुजारा है कि कैसे उनका 2 मील का अरेंजमेंट होगा. इनसे उनको इससे आगे बढ़ना है, उनको ये चीज़ इस चीज़ से आगे बढ़ना है, अपना जो लाइफ स्टाइल है वो एक्सपेंड करना है, इसीलिए उनको अपने हाथ में मनी को फील करना है. व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ द रूलिंग पार्टी? इट इज नॉट एंटी, इट इज पार्टी. ओके, दिस इज आर, राइट. इट इज पार्टी. रूलिंग पार्टी, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बताया गया है. द पार्टी इन पावर प्रोमिसेस टू गिव दैम अ कंफर्टेबल एंड लग्जरी लाइफ विदाउट वरी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जो पॉलिटिकल लीडर हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस वो आते हैं और वो उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको एक लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ देंगे, आपको कोई भी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी. If the question at the place of what is who, though, you can say the political leader or the political influential or the society owner person, वो उनसे बातें करते हैं कि हम आपको आपकी परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे, but nothing is completed. Stanza 4, it is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered and to live in the villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleep at night and the ancient way. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीज लाइन्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं इन लाइनों से. What is in the news? It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and gathered mercifully. These farmers would be settled in a village near the theatre and the store.
क्या न्यूज़ है भाई, जब इलेक्शन का टाइम आता है बड़े बड़े लीडर्स जाते हैं, जो प्रोमिस किए जाते हैं कि भाई क्या प्रोमिस किए गए हैं कि ऑल दीज पुअर पीपल्स विल बी गैदर्ड एट वन प्लेस विद देयर फैमिली मेंबर्स, दे विल बी प्रोवाइडेड होम टू लिव इन, दे विल बी प्रोवाइडेड एंटरटेनमेंट मीन्स लाइक थिएटर्स, स्टोर्स, मार्केट प्लेस, दे विल बी प्रोवाइडेड विद द एम्प्लॉयमेंट। ये उस टाइम पे ब्रेकिंग ऑफ फ्लैश न्यूज़ होती है। Next is what according to the greedy good doers is the benefit of the farmer. The farmers won't have to think for themselves anymore. किस तरह से ये उनके लिए हेल्प करते हैं? जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं वो उनकी हेल्प कैसे करते हैं? वो उनकी हेल्प करते हैं कि व्हेन दे आर कंसोलिंग दैम कि भाई यू नीड नॉट टू वरी, ऑल थिंग्स वील डू फॉर यू, हम सब आपके लिए करेंगे, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बस सो, you just go and sleep throughout the night, but when they are when they fall false, okay, in their promises, then what they just take their sound sleep of night as well. Next question, swarm over their life enforcing benefits, explain. इसका मतलब क्या है swarm over their life enforcing benefits? Aboric mentioned like here lines means, यहाँ पे mentioned line means capturing the lives of the farmers by enforcing their own benefits using them for purpose. यानी कि इसका मतलब क्या है, जो आप फार्मर्स को इन्फोर्स कर रहे हो बेनिफिट के लिए, उसमें उनका एक तरह से देखा जाए तो उनका बेनिफिट नहीं है, एक्चुअली यू आर फुलफिलिंग योर पर्पस, मतलब यू आर जस्ट आस्किंग देयर वर्ड्स बाय मेकिंग द फॉल्स प्रोमिसेस, तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर मेकिंग योर वेटेज हायर इन द इलेक्शन डिपार्टमेंट, राइट। आपको पता चल जाएगा भाई हमारे पास तो इतने वोट हमारे पक्के हो गए हैं, बट what about your promises that you told them, वो तो उनके लिए false proof होता है। Then how their sleeping would be destroyed, by teaching them how to sleep their ancient way of sleeping would be destroyed। जो उनका ancient way है sleeping का, जो पहले आराम से सोते थे जब उनके पास कोई भी इस तरह के फॉल्स प्रोमिसेस नहीं थे, जब उनके फॉल्स प्रोमिसेस आ जाते हैं तो वो सो नहीं पाते हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू ड्रीम इन दिस वे, वो इस ड्रीम में रहते हैं कि हाँ अब हमारे पास गाड़ी होगी, हमारे पास खाने के लिए होंगे, हमारे पास कपड़े होंगे, हमारे पास बच्चे हमारे जो हैं वो स्कूल जाएंगे, काम होगा, घर होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलवेज देयर इन द माइंड, एंड दैट्स वाई दे डिस्ट्रॉय देयर स्लीप ऑफ नाइट एज वेल एज द डे स्लीप। वाई? बिकॉज दे पोस्ट दैम टू सी और टू कम इन द ड्रीम वर्ल्ड लाइक दिस। जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने पहले किया था, उन लोगों ने सारी चीज़ें जो छोटे लोग थे उनकी हत्या ली थी और उनको प्रॉमिस किया था कि नाउ यू विल लीड अ वेरी गुड लाइफ, बट लेटर ऑन दे केम टू नो कि देयर लैंड आर जस्ट कैप्चर्ड बाय दैम एंड जनरेशन टू जनरेशन दे पास ऑन, just we can say ना just complete their compensation, जो भी उनसे लिया गया था वो उसको चुकाते रहते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाता है उनका जो भी उन्होंने उनसे बोरो की थी लैंड। सेम ऐसे ही जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो उनसे फेक प्रोमिस करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम आपको ये देंगे जिससे आप जाके आराम से सो, आपके लिए सब कुछ हम करेंगे, बट क्या होता है व्हेन द प्रोमिसेस फॉल्स फेक, तो उनको जो रातों की नींद होती है वो भी गायब हो जाती है कि नाउ व्हाट दे विल डू। पहले जैसे वो सोते थे आराम से साउंड स्लीप करके, अब वो भी उनकी छिन जाती है। Stanza number 5, sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish launching in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all the day in almost open prayer. For the squeal of the brakes, the sound of the stopping car. Of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. And one day to stop, but only to plow up the grass and using the yard to back and turn around. And another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sail it a gallon of gas. They couldn't, this crossly thy had none didn't it see. thy again यहाँ पे आया है you के लिए, आर्केइक वर्ड है जो पहले पोएम्स में यूज किया जाता था। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what can be hardly borne by the poet? The poet can hardly bear the thought that so much childish longing in vain, expectation that would never be fulfilled. वो क्यों इतने ज़्यादा क्या सहन नहीं कर सकते हैं? जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि I cannot bear anymore, वो क्या नहीं सहन कर सकते हैं? Means the childish longing that is useless. मतलब आपकी डिज़ायर कि कोई तो अब आएगा, कोई हमारा सामान खरीदेगा, लेकिन ये सब यूजलेस होता है। Nobody stop there and nobody buy anything. What do they wait for? The farmers wait for the squeal of the brakes, the sound of the stopping car. Actually, they wait for the real customer. देखो जब ये आंसर आता है आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है कि they wait for the money, they wait for the customer. No,
जो टेक्सचुअल क्वेश्चन में से अगर एक्सट्रैक्ट आता है तो एक्सट्रैक्ट में से आपको लाइंस लेना बहुत ज़रूरी है। वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? वो वेट कर रहे हैं स्क्वील्स ऑफ द ब्रेक्स, ब्रेक की आवाज़ का ब्रेक कर रहे हैं, साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार का वेट कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपने आप ये लाइन लिखी है रियल कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ? कार और ब्रेक का मतलब कि वो उसमें से कस्टमर उतर के आएगा और उनका सामान खरीदेगा। नेक्स्ट देखो, हाउ कार्स आर सेल्फिश। कार्स आर सेड टू बी सेल्फिश बिकॉज nobody stops there to buy anything but an inquiry or to plow up the grass or by turning their heavy vehicles। क्या है कार को सेल्फिश क्यों कहा है? अगेन सेल्फिश कार अगर बोले तो ट्रांसफर्ड एपिथेट। सेल्फिश कौन है? जो कार में बैठे हुए हैं। कैसे हैं वो सेल्फिश? बिकॉज वो जो आते हैं वो कुछ खरीदने के लिए नहीं आते हैं, वो या तो घास को जो ग्राउंड है उसके टर्न करके चले जाते हैं, जो अपने हैवी व्हीकल्स हैं घास को तोड़ देते हैं, प्लो कर देते हैं, ठीक है, और उसके अलावा कुछ है जो इंक्वायरी करके वहां से चले जाते हैं। ये रास्ता कहाँ जाता है? लाइक दैट। What is the reply of the farmers at last? The farmers angrily reply that they have nothing as per their demand and do they not see whatever they are selling। जब उनको गुस्सा आता है, कोई कार रुकती है तो एक एस्पिरेशन, एक होप जगती है कि मे बी ये जो कार रुकी है मे बी हमसे कुछ सामान खरीदे, हमारे पास कुछ पैसा है। लेकिन जब वो इस तरह की यूजलेस बातें करते हैं, व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट द गैलन ऑफ द गैस कि कैन यू फिल, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। उनका क्या आंसर होता है कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या मैं गैस बेच रहा हूँ या वेजिटेबल बेच रहा हूँ। तो दिस वुड बी द रिप्लाई, द एंग्री रिप्लाई ऑफ द फार्मर्स टू दोज कस्टमर्स हु आर आस्किंग द यूजलेस क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर स्टैंजा नंबर 6। I'm so sorry. No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of the spirit has never been found. Or so the voice of the country seemed to complain. I can't help owning the great relief it would be to put up these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. First question, what is not found in the country money? The requisite lift of the spirit is never found in country money as the country scale of gain। जो रिक्वायर्ड लिफ्ट है स्पिरिट की, जो रिक्वायर्ड है कंट्री के जो हमारा मनी है, जो कंट्री मनी है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है? टू लिफ्ट अप द स्पिरिट ऑफ दोज पीपल। बट वो कभी नहीं रहती है। वाई? बिकॉज दे पीपल आर नॉट हैविंग एनी शेयर टू लिफ्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड दैट्स वाई उस जो नेशनल इकोनॉमी है उनमें जो लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनका कोई भी हिस्सा नहीं है। Now, who complains and why? The voice or the villagers of the country complains because no relief is given to them from the government or the greedy good doers। कौन कंप्लेंट कर रहा है इस चीज़ का कि भाई जो नेशनल मनी है, कंट्री मनी है, उसमें हमारा कोई भी शेयर नहीं है, क्योंकि हम कोई भी अपना शेयर हमारी तरफ से नहीं दे रहे हैं। वो क्या कंप्लेंट कर रहे हैं? वो किससे कंप्लेंट कर रहे हैं? वो गवर्नमेंट से कंप्लेंट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल और सोशल ग्रीडी गुड डूअर्स हैं उनसे कंप्लेंट कर रहे हैं, जो विलेजर्स हैं वो उनकी आवाज़ है। How poet finds himself helpless? The poet finds himself helpless as he is unable to put those people out of their pain at one stroke। एक ही झटके में वो उनके पेन से नहीं निकाल सकते, इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट was feeling the real pain of those general people। Why was the poet wondered? The poet was wondered because he was expecting them to come to him and put him gently out of his pain। वो क्यों वंडर कर रहे हैं? कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से कि वो आएंगे और जेंटली उनको उनके पेन से दूर कर देंगे। यहाँ पर बताया गया है कि पोइट जो अपील कर रहे हैं, ही वॉज नॉट श्योर कि रीडर्स जो पढ़ रहे हैं, जो सिटी के लोग हैं, वो उनकी परेशानी को समझेंगे या नहीं समझेंगे। अकेला ये पेन किसका है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द राइटर इज फीलिंग द रियल पेन। वो चाहते हैं कि ये रियल पेन सबको फील हो, ओनली दैन दे कैन डू समथिंग गुड फॉर दैम। बट जब ये चीज़ नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोगों से कि हम लोग उनके पास जाएं और बहुत स्लोली और बहुत प्यार से विद कंसीडरिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उनके पेन से दूर करें। नाउ आफ्टर द एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, जस्ट मूव ऑन टुवर्ड सम टेक्सचुअल पार्ट। This is from page number 100. Have you ever stopped at the roadside stand? What have you observed there? अगर आपने कभी भी अपना कोई व्हीकल वहाँ पे रोका हो तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? The poet believes that when we encounter a beautiful thing, even for a small moment,
the pleasure remains with us forever. It leaves a lasting impression that inspires us to live life with hope and optimism. तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने रोड साइड स्टैंड के पास कभी कार रोका है और क्या ऑब्जर्व किया है कि हाँ हमने कभी रोका भी है, तो जो हम ब्यूटीफुल थिंग एनकाउंटर इज कॉल्ड मिलना, टू मीट द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो हम जिससे मिलते हैं इवन फॉर अ स्मॉल मोमेंट, बहुत थोड़ी देर के लिए भी अगर हम कभी भी रुकते हैं तो क्या होता है, काइंड ऑफ प्लेजर दैट वी आर हैविंग दैट रिमेन्स फॉर एवर. ऐसा याद रहता है ना कि वेन एवर वी आर गोइंग ऑन एनी टूर या ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, कभी रास्ते में रुकते हैं, द ब्यूटीफुल सीनरी, वी स्पेंड सम ऑफ द टाइम एंड दैट रिमेन्स एज अ मेमोरी in the form of the photograph and videos, and that we cherish throughout the futuric time. हमेशा हम लोग उसको चेरिश करते हैं उन मेमोरीज़ को. तो यही उन्होंने बताया है कि इस तरह की जो मेमोरीज़ हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं, बट उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत लास्ट होता है. इट लीव्स अस लास्टिंग इम्प्रेशन, और ये होप और ऑप्टिमिज्म बढ़ाती हैं. हमको आगे की जो ज़िंदगी होती है उसको जीने के लिए थोड़ा सा हम में क्या आ जाता है, पॉजिटिवनेस आ जाता है. यहाँ पर रोड साइड स्टैंड का जो मीनिंग है दैट इज़ फॉर दोज पीपल हु आर सेलिंग समथिंग एट द साइड ऑफ द स्टैंड. क्या आप वहाँ पर कभी रुके हो? दिस यू कैन राइट एट योर ओन आंसर. अगर आपने कभी कुछ खरीदा है वहाँ से, अगर आपने सच में उस इरादे से आप गए हो कि हाँ हमको इन लोगों से कुछ लेना है, अगर आप सच में इस चीज़ से गए हो, देन यू कैन राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू योर वे. Now here the next question. The folk who drove the coy folk who drove through the countryside hardly paid any heed to the roadside stand to the people who ran it. If at all they did, it was to complain. Which lines bring this out? What was their complaint about? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी लोग वहाँ से निकलते हैं उनका एग्जैक्ट वे क्या होता है, वो क्या सच में वहाँ से जो निकल रहे हैं उनकी जो वी कैन से द माइंड सेट है टू ब्रिंग इट दिस आउट. कौन सी लाइन है जो टेक्स्ट में बताती हैं कि वो जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं वो जो कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये लोग हमारे पास नहीं रुके, whoever the person they are going in the car, और किस तरह की उनकी कंप्लेंट होती है वो हमको टेक्स्ट में से लिखना है. The polished traffic passed with the mind ahead, or if ever a cider moment, then out of the sort at having the landscape marked with the artless paint of sign that with N turned wrong and S turned wrong. According to the city folk, these stalls were inartistic signboards blemish the scenic beauty of the landscape. So this is city folk. Okay, ये यहाँ पे कॉय folk नहीं है, this is city folk. ये city folk है. जब भी वो लोग रुकते हैं उनकी क्या कंप्लेंट रहती है. अब जब भी वो कभी भी मतलब जा रहे हैं आगे थोड़ी एक मिनट के लिए भी, अगर जस्ट आफ्टर लुकिंग एट द लैंडस्केप ब्यूटीफुल माउंटेन एरिया अगर वो रुक भी जाते हैं तो वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो आर्टलेस पेंट है, जो साइन बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है डायरेक्शन का जिसमें एन है और जो एस है, जो साउथ है नॉर्थ है, वो टर्न हो गए हैं रॉन्ग साइड पे. इस वजह से वहाँ की जो लैंडस्केप की ब्यूटी है वो ख़त्म हो रही है. एंड बिसाइड्स दैट जो वहाँ पे इन आर्टिस्टिक साइन बोर्ड लगा है किसके फॉर्म में, जो स्टॉल्स हैं, जो रोड साइड स्टैंड लगे हुए हैं, जो हट में मीन्स एक तरह से पुअर हट के आगे जो न्यू शेड लगा दिया है, वो क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट लाइक अ ब्लैमिश द सीनरी ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप. वो उसको डिटेरियोरेट कर रहे हैं, वो उसको स्पॉइल कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं. उनके अकॉर्डिंग वो क्या बोल सकते हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, मतलब वो एक धब्बे के जैसे लग रहे हैं, वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए. उनकी कंप्लेंट होती है. मीन्स the same person, they are not having the place in the city and that's why they have come out of the city. Even then they are just we can say means responsible, they are blaming for spoiling the beauty of that landscape by these selfish city dwellers. What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? plea बोल सकते हो request. तो जो request है उन folk की क्या है, the ruler folks pleaded pathetically for some customers to stop by and buy some of their goods. City folks used to pass by on the road and hence the ruler folks set up the roadside stand and attract their attention and sell their goods. वो क्या प्लिया कर रहे हैं, क्या प्लीट कर रहे हैं कि वो थोड़े देर के लिए हमारे पास रुक जाएं, एज अ कस्टमर हमारे पास आ जाएं, जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो हमसे खरीद लें, सो दैट वी कैन ऑल्सो हैव द मनी. दिस इज़ देयर रिक्वेस्ट. और ये जो रोड साइड स्टैंड है वो उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करे जिससे कि वो उनकी चीज़ें खरीदने के लिए आ जाए.
तो उन्होंने थोड़ा सा अपना खुद का जो पर्सनल मनी है वो भी स्पेंड किया है, जिससे कि उनका जो स्टॉल है, जो पुराना सा हट है, वो स्टॉल थोड़ा सा सुंदर लगे, जो उनको अट्रैक्ट कर सके कस्टमर को और वो उनके पास आए, ये उनका रिक्वेस्ट है. The government and the other social service agencies appear to help the poor rural people, but actually do them no good. Pick out the words and phrases that the poet uses to show their double standards. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है, जो सोशल सर्विस एजेंसी है, वो उनसे प्रॉमिस करती है कि वो उनके लिए कुछ अच्छा करेंगी, उनकी हेल्प करेंगी, बट एक्चुअली में वो उनके लिए कुछ भी नहीं करती हैं. तो कौन से फ्रेजेस हैं जो इसमें बताए गए हैं थ्रू द वर्डिंग्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. The poet criticizes the double standard of the government and other social service agencies who promises to improve the standard of living. It is living. आए है ये of the poor farmers and show them the rosy side of the life. Yet when the time comes to deliver their promise, they either forget their or fulfill them by keeping in the views or their own benefit. This is fulfill, right? Fulfill their own benefits. The poet calls them greedy good doers and beneficent beast. ये phrase use कर गए हैं. देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आपको डिमांड देखना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट क्वेश्चन इज डिमांडिंग. यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ड्स और फ्रेजेस हमको यहाँ पर लिखने हैं, और ये रहे वो वर्ड और फ्रेजेस जो यहाँ पर बताए गए हैं. और क्या बोलते हैं, बीस्ट ऑफ द प्रे, ये कंप्लीट है. स्वॉर्म ओवर देयर लाइफ, इस तरह के फ्रेजेस यहाँ पर यूज किए गए हैं. The poet says that these greedy people make calculated and well thought their shrewd moves, to which the innocent, unaware farmers fall prey. These humble and simple farmers are robbed of their peace of mind by these clever people, and the poet says in forcing benefit that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. वो यहाँ पे बता रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड, दो रूप हैं इन गवर्नमेंट के. एक तरफ तो वो उनको प्रॉमिस करते हैं दे विल प्रोवाइड गुड सर्विस, बट एट द अदर साइड जब उनका टाइम आता है तो वो उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं. उनके जो प्रॉमिसेस हैं वो कैसे हैं वो फॉल्स हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, फॉरगेट कर देते हैं. रोजी साइड ऑफ लाइफ आप बोल सकते हो, एक कंफर्टेबल साइड ऑफ लाइफ, एक होप, फुल ऑफ एस्पिरेशन, फुल ऑफ द नेसेसिटीज जो लाइफ का प्रॉमिस करते हैं वो भूल जाते हैं. और क्या याद रखते हैं, सिर्फ अपने बेनिफिट याद रखते हैं. कौन से फ्रेजेस दिए हैं उन्होंने उनको ग्रीडी गुड डूअर्स बोला है, बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ द प्रे बोला है, स्वॉर्म ओवर देयर लाइफ्स बोला है. और ये जो ग्रीडी पीपल हैं ये मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं. और ये जो इनोसेंट और अनअवेयर फार्मर्स हैं वो इनके शिकार हो जाते हैं, वो इनके विक्टिम हो जाते हैं. उनको इनकी ये कैलकुलेशन समझ नहीं आती है. वो जो कैलकुलेशन है उसमें ऑब्वियसली दे विल कीप देमसेल्व्स एट द हायर प्लेस, हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं. ये जो हम्बल और सिंपल फार्मर्स हैं जो नेचर में हैं, ये क्या होते हैं, ये इनको रॉब करते हैं. क्या चीज़ रॉब करने के लिए मनी नहीं है, ये इनका पीस ऑफ द माइंड रॉब कर लेते हैं, इनकी शांति छीन लेते हैं बाय मेकिंग दैम फॉल्स प्रॉमिसेस. एंड उसके बाद उनकी जो विट्स होती है, आउट ऑफ विट दे कैलकुलेट, जिससे उनकी दिन और रात दोनों की स्लीप बर्बाद हो जाती है. दिन की स्लीप्स विद द होप ऑफ हैविंग अ वेरी गुड लाइफ, और जिस तरह से वो पहले आराम से सोया करते थे बाय डूइंग द वर्क, वो भी उनकी छिन जाती है. तो यहाँ पर एक तरह से डबल साइडेड नेचर, डबल फेस बताया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो एमिनेंट और एस्टैब्लिश्ड पीपल हैं यहाँ के. What is the childish longing that the poet refers to? Why is it vain? Vain is called useless. जो childish longing है, longing is called desire. जो उनकी desire है उसको क्यों बताया है कि वो जो बच्चों वाली एक इच्छा है वो useless है. The poet thinks that the person who are running the roadside stand suffer from a childish longing. They are always expecting customers and waiting for their prospective customers. Here they keep their windows open to attract them. They become sad when no one turns up. They are always waiting to hear the squeal of the brakes, the sound of the stopping car, but all their efforts go in vain. क्या बताया है, क्या बच्चों की, जैसे बच्चों की एक इच्छा होती है कि हमारे पास ये आ जाए, वो हमेशा उसके लिए बार बार या तो बोलते हैं
या एक वी कैन से ना द पिटीफुल या एक टेम्पटेटिव साइट की तरफ से देखते हैं जो उनको चीज़ चाहिए, सेम ऐसे ही ये लोग हैं, हमेशा अपनी खिड़की खुली रखते हैं, थक जाते हैं वो बाहर इंतज़ार करते करते, जब भी वो अंदर आते हैं अपनी खिड़की खुली रखते हैं कि शायद कोई कस्टमर हो जो हमारे पास आ जाए, रुक जाए, हमारा सामान ले ले, हमारे पास कुछ पैसे आ जाएं, बट सब कुछ क्या यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है जब उनको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, किसी कार के रुकने की, किसी कस्टमर की, किसी ब्रेक के लगने की, सब कुछ जो उनका एफर्ट है वो पूरा वेस्ट चला जाता है, वेन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लाइन्स टेल्स अस अबाउट द इनसफरेबल पार्ट that the poet feels at the thought of the plight of the ruler poor. This is part. ओके, यहाँ पे हमको वो लाइंस बतानी है जिसमें कि इनसफरेबल पार्ट जो पोइट फील कर रहे हैं, पोइट क्या फील कर रहे हैं वो लाइंस हमको लिखनी है। Filled with empathy, the poet is unable to bear the plight of the unassuming and innocent ruler people. The lines below are the lines below show his insufferable pain. उनका कौन कौन सी लाइन है यहाँ पे, ये विद इन द कोटेशन मार्क लिखी गई है। Sometime I feel myself I can hardly bear the thought of so much, the childish launching in vain, the sadness they lurk near the open window than, and that waits all the day in almost open prayer. तो ये लाइन्स है जो उनको बताती हैं जिससे कि उनको फील हो रहा है द पिटिफुल कंडीशन ऑफ अनअज्यूमिंग एंड इनोसेंट पीपल की, जो बता रहे हैं वो सिंपैथी से भरे हुए हैं कि क्या है कि उनकी जो चाइल्डिश डिज़ायर है वो भी नहीं पूरी हो पाती है। छोटे बच्चों की तरह वो विंडो खुली रखते हैं कि अब कोई कस्टमर आएगा, अब हमारा सामान खरीदेगा, लेकिन कोई भी नहीं रुकता है और उनकी जो प्रेयर है थ्रू आउट द डे, इनऑडिबल प्रेयर, वो बेकार चली जाती है। तो ये जो चीज़ है, जैसे आपको याद है ना कि व्हेन वी वर वेरी स्मॉल तो हम लोगों को टीचर्स यूज टू गिव द पोम टू लर्न कि भाई ये पोम लर्न करके आना। वाई, what was the reason? Because we should be able to learn the text and to remind and to write in the exam. Okay, तो यहाँ पर ये है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि you have to write the lines, which lines, इसका मतलब you have to write the exact lines. तो अगर एक या दो बार आप टेक्स्ट पढ़ लेते हो तो ऑब्वियसली सम ऑफ द लाइन्स रिमेन इन योर माइंड, रहती हैं। अब इसके बाद अगर एक एक वर्ड के बाद एग्जैक्टली यू कैन नॉट फॉर्म द लाइन, बट इवन दैन आपको याद रहता है कि हाँ ये यहाँ से शुरू हुआ था, what words were there, तो means to get the marks in the answers, इसका possibility बढ़ जाता है। तो टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट? So we have completed the textual question based on the extract as well. Now try to solve some previous year questions and just go through the text. Definitely try to solve the poetic devices yourself, right? So with this we have completely finished the book as well, leaving one poem ahead, and after that some of the chapters I'll cover in the next coming videos for the supplementary book Vistas. Till then, take care.